Hello guys, welcome back to my channel. It's been so long I didn't shoot any haul video in a long format. So here I am. So this is gonna be a jewelry haul. In my last video I went to Janpath. It was an amazing experience and I shopped a lot in jewelry which I'm gonna show here. So this is gonna be a jewelry haul video and I'm gonna tell you the price of everything. I usually post shorts these days and I thought why not, let's try a full format video for this one. And trust me guys, मैंने मार्केट का हर कोना एक्सप्लोर करा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन लेन, साइड की शॉप्स, द फेमस तिबेटियन मार्केट, द गुजराती लेन, एवरीथिंग. सो इतना घूमने के बाद आई गॉट अ लॉट ऑफ ज्वेलरी. सो बिफोर एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्ट विद द haul. So definitely I'm gonna start with earrings. I got a lot of earrings, like a lot. I can't even count. मुझे earrings का बहुत ज़्यादा शौक है और ऑक्सीडाइज earring की कलेक्शन जनपथ में बहुत ज़्यादा अच्छी है. So I got like way too much. So let's just start one by one. Guys, I didn't remember a single shop number, so please don't ask me for that. सबसे पहले मैंने ये वाली earrings buy करी थी, मेन मार्केट के बाहर थी. I really want to try something in hanging, so I got this one. This is very pretty. ये ऐसे हैंगिंग में है और नीचे ऐसे झुमके लगे हैं. This is pretty though है और मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं करा था, so I thought why not. It costed me for 100 rupees. इसमें गोल्डन में और सिल्वर में ऑप्शन था. आई गॉट दिस इन सिल्वर बिकॉज मेरे को सिल्वर ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू गोल्ड. बट या गोल्ड भी अगर आप लेना चाहो फॉर एथनिक वेयर यू कैन बाय. I will try this very soon. The next I got this from a 50 rupees store. उस स्टोर में सब कुछ 50 rupees का था. And I got this statement earrings. These are in circle. ये कुछ ऐसे दिखते हैं, ऐसे कलरफुल में है. मेरे पास ऐसे सिमिलर में है बट उसका साइज थोड़ा छोटा है and this one is bigger. So I thought let's try this one. और ये बहुत अच्छा लगेगा साड़ी वगैरह के साथ because sometimes क्या होता है you don't want something in hanging, तो ऐसे स्टड से अच्छे लगते हैं and मेरे पास स्टड में बहुत कम कलेक्शन है. So I got this. It's only for 50 rupees guys, so I think it's worth it. The next I'm gonna show you my favorite earring from Janpath. This is so beautiful and इसको मैंने दूर से देखा and I was like I really want this. ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था but I personally love this one. Look at this guys. इसकी ऊपर में कलरफुल में डिटेलिंग है and then we have some shells. साइड का डिजाइन भी बहुत ज़्यादा pretty है and we have more shells नीचे. I am the person जिसको लॉन्ग हैंगिंग इयरिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है and ऐसे चंकी से मुझे बहुत कम मिलते हैं. Like everyone have the same silver earrings जो ऐसे झुमके में है, नीचे गोल में बना हुआ है. Everything is similar and this is something really unique and it costed me for 300 rupees. It's little expensive but for the look it's fine. Okay. The next I got this jhumkas. This is a mirror work jhumka with some pearl detailing. थोड़ा सा different है because इसमें silver और golden दोनों का काम है. इसमें ये जो pearl detailing है ये और भी ज़्यादा अच्छी look दे रहा था. But guess what guys, मैंने इसको तोड़ लिया है and I really want to fix it because it's really pretty. और इसको पहनने से पहले ही मैंने तोड़ लिया है. I don't know मैंने इसको कैसे रखा था but ये टूट गया है. We'll figure it out obviously to at least wear it once. It costed me for 200 rupees guys. This is for 200. Another one is also really pretty. This one is in white. Look at the shape guys. इसकी भी शेप मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगी. So again it's in hanging. मेरा एक ही मोटो था इस बार जनपथ में कि मैंने सुना है जनपथ की ज्वेलरी कलेक्शन बहुत यूनिक है. So I tried my best to find very unique things क्योंकि मुझे बेसिक्स चीज़ें नहीं चाहिए थी, वो तो इंसान ऑनलाइन भी मंगा लेता है. मेरे को ये बहुत ज़्यादा यूनिक लगे. So this is how it looks. Costed me around 200 or 250. I didn't remember. Next I got something in blue. This looks something like this. इसमें ऊपर से लेके नीचे तक सारा ब्लू की डिटेलिंग है, नीचे ऐसे हैंगिंग में है एंड आई रियली डोंट हैव एनी इयरिंग्स इन ब्लूज. इट कॉस्टेड मी फॉर 200 rupees guys. The next I got a very simple earring. This one is a basic झुमका. This looks something like this. ये मैंने अभी recently पहने भी थे और ये बहुत basic से हैं. These are only for 100 rupees. So yeah. The another one is not that much long. Is how it looks. ये बहुत ज़्यादा simple है. नीचे white झुमकाज है. Some polka mirror works.
इसमें और भी कलर थे बट आई चूज वाइट बिकॉज वाइट सबके साथ चल जाएगा। अगर मैं कोई पर्टिकुलर कलर लेती हूँ फिर वो उसी के साथ पहना जाएगा। एंड इट कॉस्टेड मी फॉर 250 क्योंकि ये प्रॉपर ऑक्सीडाइज इयरिंग है। नाउ इट्स टर्न फॉर रिंग्स। आई गॉट 3 rings. Start from the basic one. This is the first ring I got. This is very simple, very minimal. I do have some rings जो इस तरह की दिखती है but डिजाइन में बहुत ज्यादा फर्क है। These are very affordable. This costed me for 50 rupees guys. And it's very lightweight. तो ठीक है, it's fine. The another one is this one. Personally love this one. And again this one is very lightweight. And this one cost me for 100 rupees guys. The last one is quite expensive one. इसको लेने के लिए मैंने इतनी bargaining की है because of the झुमकास you can hear. And this one I got from Gujarati Lane. This looks something like this. This one is a proper oxidized jewelry और ये इतनी ज़्यादा pretty थी and I can't control myself to get this one. Love these kind of jewelry and मेरे को कुछ ऐसा अपने collection में add करना बहुत अच्छा लगता है. So I got this one. The next I'm going to show you the bangles and चूड़ी what I got. Bangles मैंने सारी जनपत लेन से ही ली हैं but चूड़ी I went to the प्राचीन हनुमान मंदिर. उसकी चूड़ी मार्केट बहुत ज़्यादा फेमस है. So I got like a lot of चूड़ीज from there. So उसको भी मैं इसी वीडियो में दिखाती हूँ आपको. So let's just start with the bangles. So firstly I'm gonna start with the best. I got a very beautiful, so I'm starting with the best. I got a very beautiful stack in wooden. Wooden bangles are all over my Pinterest and I really want to try this out and I got this very beautiful stack. Single bangles भी थे but single से मुझे लगा कि let's buy one stack. I will get some more wooden bangles जब भी मैं next time जनपत जाऊंगी क्योंकि जनपत की wooden collection. So let me just show you. This is the stack. This is how it looks. इसमें एक बड़ा सा wooden bangle है. With that we have 2 more small wooden bangles and some golden. Between stack में ये सिर्फ 2-3 चीजें थी. 2-3 मैंने खुद ऐड करवाई हैं. सो ये कुछ ऐसा दिखता है. आप इसको कैसे भी मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो. एंड फॉर दिस होल स्टैक इट कॉस्टेड मी फॉर 430 रुपीज गाइज. एक्सपेंसिव ना. सो सबसे पहले ये वाला पहन लेते हैं. बाय द वे वुडन बैंगल्स बहुत अच्छी लगती हैं पहन के. आप अगर कुछ भी डेनिम में आउटफिट पहन रहे हो और एनीथिंग इन बोहो, सो यू कैन जस्ट वेयर इट लाइक दिस. आजकल वैसे भी स्टैक्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है. बाय द वे आई एम गोना स्टाइल ऑल दिस इन माई अपकमिंग ट्रिप. मैं घूमने जा रही हूँ फिर से एंड विल स्टाइल दिस देयर. अभी मार्केट में क्या है ना, कुछ भी ट्रेंडिंग आता है उसके प्राइस यहाँ से यहाँ कर देते हैं क्योंकि ट्रेंडिंग है, सब ले ही लेंगे. सो दैट्स वाई इस पर मैंने बहुत बार्गेनिंग करने की कोशिश की. ये और मैंने वो रिंग साथ में ली थी उन अंकल से इन गुजराती लेन. तो उन्होंने मुझे ऐसे 50 और 100 रुपीज़ का डिस्काउंट कर दिया था. बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू बार्गेनिंग इन गुजराती लेन क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे अड़ जाते हैं कि नहीं ये तो कम नहीं होगा, ये तो बहुत यूनिक है, ये तो बहुत अच्छा है टाइप करके. सो मैंने वैसे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी थी गुजराती लेन में जो मैंने नहीं ली बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग. क्योंकि उनके प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द होल मेन जनपत मार्केट. गुजराती लेन की थोड़ी ज़्यादा है और उनके पास कलेक्शन जेन्युइनली बहुत अच्छा है. गुजराती लेन का कलेक्शन इज द बेस्ट कलेक्शन. यू आर लुकिंग फॉर एनी एथनिक वेयर और एथनिक ज्वेलरी, उनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन है और प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. So yeah, this is the first bangle. Then next I got this kada. I really want something in broad and I got this one. This is so pretty and obviously colorful. मुझे ऐसा था कि colorful होगा तो किसी के साथ भी पहना जाएगा. I saw a lot of patterns इसमें और इनके दिखा देती हूँ. ये ऐसे खुलता है and yeah, this looks something like this. Pretty. This one is pretty. This one costed me for 100 rupees guys. It's quite affordable. ये वाला स्टॉल भी मेन जनपत मार्केट से बाहर लगा हुआ था. उनके पास ऐसे ब्रॉड बैंगल्स में बहुत अच्छी कलेक्शन थी इन 100 रुपीज़. सो इफ़ यू आर रोमिंग अराउंड जनपत तो ज़रूर ढूंढना वो स्टोर, बहुत अच्छा था. The next I got another stack. By the way, I got this stack from the Tibetan Market Lane. वो मार्केट बहुत ज़्यादा overrated और बहुत ज़्यादा अच्छी है बट उनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है. बट दिस स्टोर इनकी प्राइसिंग अच्छी थी. उनके पास बहुत अच्छे वुडन बैंगल्स भी थे, बहुत सारे अच्छे स्टैक भी थे और कुछ छोटे ज्वेलरी के कलेक्शन भी थे. Rather than that, अगर आप थोड़ा आगे बढ़ोगे, I didn't remember the shop name. उनके पास भी स्टैक बहुत ज़्यादा सुंदर थे. I didn't get any stack from there, but वो 250-350 के थे. अगर आप मेरा व्लॉग चेक करोगे, मैं लिंक
डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। स्टोर में बहुत अच्छी अच्छी स्टैक की कलेक्शन थी और दे आर फॉर 250-350 रुपीज और बहुत अच्छी कलेक्शन भी थी। चाहते हो आप बार्गेनिंग कर सकते हो। मैंने ट्राई नहीं की बिकॉज उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग ऑलरेडी कर चुकी थी। सो आई गॉट दिस वन। उन्होंने मुझे ऐसे पोटली में दिया। दिस पोटली इज़ वेरी प्रिटी दो। और उन अंकल की वीडियो भी मैंने अपने व्लॉग में डाली थी, आप ज़रूर चेकआउट करना। और उनका स्टोर भी दिखाया था। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। दिस इज अ स्टैक, सेम शेप में है और अटैच्ड है और इसको आपको ऐसे साथ में पहनना है ऐसे करके। आई फाउंड दिस वेरी यूनिक एंड इसकी शेप भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, नॉट इन दैट बोरिंग सर्कल। इसको बस आपको ऐसे पहन लेना है, वेट, एंड ये अपने आप ही स्टैक लगेगा, बट दिस इज एक्चुअली वन। सो बहुत ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट था, इसलिए मुझे ये अच्छा लगा। And this one is affordable also. This costed me for only 150 rupees. उस तिबेटियन मार्केट की लेन में आई गेस ये एक ही स्टोर था जो मुझे थोड़ा अफोर्डेबल लगा। बाकी मैंने बहुत अच्छी अच्छी स्टोर्स और भी ट्राई करी एंड द प्राइजेज आर सो हाई। आई डिडंट इवन एक्सप्लोर क्योंकि प्राइसिंग बहुत ज़्यादा थी और मैं बिल्कुल एंड पे गई थी तिबेटियन मार्केट। और मैंने जो बाकी शॉपिंग कर ली थी उसके कंपैरिजन में मुझे कुछ इतना अच्छा मिला नहीं और तो सिर्फ यही लिया। आई ऑल्सो गॉट अ वेरी प्रिटी बैग फ्रॉम गुजराती लेन। This looks something like this. It's a very छोटू सा बैग। If you know me, I love small bags. मुझे वॉलेट बैग, स्मॉल बैग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, like a lot। और ये मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा था, मैंने जितना भी इंटरनेट पे देखा था, बट मेरे पास था नहीं ऐसा कुछ। सो आई गॉट दिस। दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस। इसमें ब्लू में डिटेलिंग है, इसकी बैग भी डिटेल्ड है सारी और इसमें जो बैक में से सिंगल स्टोन लगा है, दिस लुक सो प्रिटी। और इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत छोटू सा है, मेरे हाथ जितना, मेरे हाथ भी बहुत छोटे हैं। एंड वी ऑल्सो हैव स्लिंग इन इट, तो आप इसको ऐसे पहन सकते हो। दिखेगा नहीं बट या ये कुछ ऐसा लगता है एंड ये ऐसे खुल जाता है और इसका अंदर सारा वेलवेट में है अगर आप देख सको तो। और मैंने इसके अंदर कुछ कॉइन्स रख रखे हैं बिकॉज हमारे में पर्स खाली नहीं रखते हैं और मेरे हर पर्स में कुछ ना कुछ कॉइन्स, अगर नोट नहीं है तो कॉइन्स उसमें रखे ही होंगे। आई नेवर कीप इट एम्प्टी एंड दिस बैग कॉस्ट मी फॉर 350 रुपीज़। फॉर 350 इट्स फाइन क्योंकि मैंने ऑनलाइन 500-600 का देखा था बट मैंने उसको लिया नहीं था। सो 350 में it's fine. For the last, let's come to the चूड़ी collection. I got a lot of चूड़ीज। अगर आप प्राचीन मंदिर, हनुमान मंदिर जाओगे, उसके पीछे ही बहुत अच्छी चूड़ियों वाली मार्केट है। There are lot of stores और मैंने particularly बाबू चूड़ी वाले से चूड़ी ली हैं, सारी की सारी एक ही स्टोर से ली है मैंने और प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा जेन्युइन थे और जेन्युइन की वजह से मैंने ज़्यादा ले ली है। I will show you what I got one by one. So let's start with the first one. So the first one is obviously a pink चूड़ी। By the way, मैंने सारी की सारी चूड़ी एक एक दर्जन ही ली है क्योंकि मैं सिर्फ एक ही हाथ में पहनती हूँ, मैं दो हाथों में चूड़ी कभी भी नहीं पहनती हूँ। So this is my first चूड़ी। This one is in pink and इसमें वो छोटी छोटी स्मॉल स्टोन डिटेलिंग हो रखी है और पर दर्जन मुझे 100 रुपीज की पड़ी है ये चूड़ियाँ। पिंक में भी उनके पास बहुत अच्छे अच्छे शेड थे, लाइक डार्कर एंड डार्कर, बट मैंने ये वाला लिया है बिकॉज दिस वन इज क्वाइट pretty. So first one is this pink one. Let's open the second one. The second one is in transparent. ऐसे stone detailing हो रखी है, इसी के साथ भी पहन सकते हो। It will look pretty. तो close up दिखा देती हूँ। This looks something like this. One is also for 100 rupees. The another stack I got it in white. दिस वाइट चूड़ी ये मैंने सबसे पहले देखी थी और इस पे मेरा दिल आ गया क्योंकि दिस वन इज रियली यूनिक। पिंक, वाइट, ट्रांसपेरेंट सब पहन रहे थे बट दिस वन इज क्वाइट यूनिक। मैंने इसको कभी अभी तक किसी को पहने नहीं देखा है। दिस वन इज एन प्रॉपर मिल्क वाइट शेड एंड इस पे भी ऐसे स्टोन की डिटेलिंग हो रखी है। इसको वाइट सूट के साथ पहनोगे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड आई पर्सनली लव दिस वन। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये। दिस वन इज ऑल्सो फॉर 100। उसी के साथ आई गॉट सम कड़ाज स्टैक करने के लिए विद चूड़ीज। दीज आर द फेमस कश्मीरी कड़ाज। ये कश्मीरी कड़ाज अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। इनमें ऐसे झुमकों की डिटेलिंग हो रखी है एंड ये मैंने गोल्डन में लिए हैं बिकॉज चूड़ियों में गोल्डन ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड फॉर 4 पीसेज इट कॉस्टेड मी फॉर 200 रुपीज़
ठीक है, ऑनलाइन 600 रुपीज़ के मिल रहे थे, 4 या 6, आई डेंट रिमेंबर, सो आई गेस 200 में ये ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर द हॉल। आई पर्सनली लव ऑल द कलेक्शन आई गॉट दिस टाइम। एंड आप भी मुझे कमेंट करके बताना आपको कौन से ईयररिंग, रिंग या कोई भी चूड़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको और हॉल वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू शूट इन अ लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।